لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے اور نعمت ہے۔ 2 دن مسلسل ہم نے مجلس کی ابتدا سورہ الحمد سے کی تھی، آج چکی اس 5 مجالس کی آخری مجلس ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ آج کی مجلس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے ہی ابتدا کی جائے، کیونکہ رسول اسلام نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر کوئی تم پر 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے تو اے بیٹی اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا، بلکہ رسول اسلام نے جو کتاب میں روایات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا روز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے محشور کیا جائے گا جس نے روئے زمین پر جناب زہرا پر صلوات بھیجی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر کوئی جناب زہرا پر 1 بار صلوات بھیجتا ہے یا 2 بار صلوات بھیجتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں ہمارا خلوص کتنا شامل ہے، اس میں ہماری نیت کتنی شامل ہے، کیونکہ صلوات صرف صلوات نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے نام اعمال سے پروردگار عالم گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے کہ آیا ہماری کس عبادت سے یا ہمارے کس اعمال سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو اعمال ہے، جو عبادت ہے، ہم اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبول کرے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری کون سی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، یا ہمارا کون سا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، یا جو حاجی خانہ خدا کا چکر لگا کر آ رہے ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر رسول اسلام اس معیار کو بتائے بغیر چلے جاتے تو یہ ناانصافی ہوتی کہ رسول اللہ نے بتایا نہیں کہ اللہ کس اعمال سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اسلام نے اس معیار کو دنیا کے سامنے رکھا اور اتنی شان سے رکھا ہے کہ روایات کہتی ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، سامنے اصحاب ہیں، سامنے صحابی رسول ہیں اور منبر پر رسول اللہ ہے، یعنی نگاہ رسول صحابی پر ہے، صحابی کی نظر رسول اللہ پر ہے، اور رسول خطبہ دیتے دیتے اچانک ایک مرتبہ رسول کی نظر اپنے صحابیوں سے ہٹ
کر کے کسی جانب پہنچ گئی۔ اچھا مجمع کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بچہ بھی آ جائے تو آپ کی توجہات یہاں سے ہٹ کر کے اس بچے کے جانب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دروازہ کھول دے تو ہم پلٹ کر کے دروازے کو دیکھنے لگتے ہیں، کوئی اندر داخل ہو جائے تو پھر ہم پلٹ کر کے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے صحابیوں نے بھی رسول کے چہرے کو دیکھا کہ رسول کی نظر کسی جانب گئی ہوئی ہے۔ اب جب پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ دروازہ فاطمہ ہے جہاں پر رسول کی نظر ٹھہر گئی ہے۔ رسول نے دیکھا کہ بیٹی رسول کی فاطمہ حجاب میں ملبوس ہو کر کے اور اپنے دونوں فرزند کا ہاتھ تھام کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی فاطمہ نے مسجد نبوی میں قدم رکھا رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول کھڑے ہوئے تو رسول کے احترام میں تمام صحابی بھی کھڑے ہو گئے۔ رسول کے صحابی کھڑے ہوئے تو دیکھا فاطمہ حجاب میں ملبوس دونوں فرزند کا ہاتھ تھامے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ تمام صحابیوں نے جگہ بنا دیا۔ فاطمہ رسول اسلام کے پاس پہنچی، باپ کو سلام کیا۔ رسول نے کہا کہ اے بیٹی بیٹھ جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے جگہ کتنی معتبر تھی؟ مسجد نبوی، اور مسجد کا اصول یہ ہے کہ وہاں پر مصلی بچھا رہتا ہے۔ آپ آئیے اور عبادت کریے اور چلے جائیے۔ رسول نے جیسے ہی اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ، فاطمہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ رسول نے آواز دیا فاطمہ ٹھہرو ذرا۔ رسول کی آواز آئی، فاطمہ ٹھہری۔ رسول نے دوش سے چادر کو اتارا، اس مصلی پر چادر کو بچھایا اور اس کے بعد کہا فاطمہ اب بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے سوال کیا کہ بابا یہ تو مصلی ہے، میں اس پر بیٹھ سکتی تھی؟ تو رسول نے کہا اے بیٹی تیرا مرتبہ اس مصلی سے بہت زیادہ افضل ہے، تو بہت بابرکت ہے، اس سے افضل ہے، اور میں نے اسی لیے اپنی دوش سے چادر کو اتار کر کے بچھایا کہ زمانے والوں کو پتہ چلے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے۔ باپ بیٹی میں تھوڑی دیر باتیں ہوئی، پھر رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے بیٹی کے احترام میں کچھ قدم چلے، اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جب دیکھا کہ فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی تو رسول اسلام اب پلٹ کر کے اپنے مقام پر آئے۔ جب اپنے مقام پر آئے تو صحابیوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بیٹی کے اتنا احترام کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے بیٹی کے احترام میں کھڑے بھی ہو گئے، بیٹی کے لیے چند قدم آگے بھی بڑھے، بیٹی کے لیے اپنی ابا کو اس مصلی پر بچھا دیا۔ کیوں رسول اللہ؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ صحابیوں اسی مسجد نبوی سے میں نے ایک حدیث تم تک پہنچائی تھی کہ اگر فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا فاطمہ رضا الہی ہے، غضب فاطمہ غضب الہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ رسول گئے تو لیکن رضا الہی اور غضب الہی کا معیار بتا کر کے گئے کہ دیکھو فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ اب جس سے خدا ناراض ہے وہ چاہے جتنی عبادت الہی کر لے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول ہو جائے گی جب تک فاطمہ راضی نہ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اسلام نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس نصیحت پر عمل کر لے جاؤ۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی نصیحت ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو حدیث قدسی یعنی قرآن کے علاوہ جتنے اللہ کے پیغامات آئے ہیں یا تو وحی کے ذریعے آئے ہیں یا اس نے اپنی قدسی حدیث قدسی کے ذریعے بتایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو کہا حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ 3 گروہ ایسے ہیں جس پر پروردگار عالم فخر کرتا ہے۔ فخر کہتے ہیں ناز کرنا۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون سے گروہ ہیں جس پر اللہ فخر کرتا ہے؟ اور مجھے یاد ہے شاید میں نے کسی مجلس میں بیان کیا ہے لیکن یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر یاد ہوگا تو میں صرف ایک اشارہ کر دوں گی۔
रसूल इस्लाम ने कहा कि पहला गिरोह वो है, पहला इंसान वो है जिस पर अल्लाह फख्र करता है जब वो सहरा में हो और तन्हा हो, उसे देखने वाला कोई ना हो, लेकिन जब नमाज का वक्त आए तो वो अपनी इबादत को अजान और अकामत से पढ़ता है, जबकि सहरा में उसे देखने वाला कोई नहीं है सिवाए मेरे, लेकिन मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत में इसने सहरा में लोगों का इंतजार नहीं किया कि लोग मुझे देखें कि मैं अजान कह रहा हूँ, कि मैं अकामत कह रहा हूँ, बल्कि अजान और अकामत के साथ में इसने मेरी इबादत को अंजाम दिया। इसे नहीं पता है ये जाहिर में अकेला है, लेकिन इसके पीछे मैंने 70,000 मलाइका की सफ़े लगा दी है जो दूसरे दिन तक इसके हक में इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। अब आप सोचिए अल्लाह अमले कलील पर अजर कसीर कैसे अता करता है। अल्लाह ने नमाज को नहीं देखा कि कितनी नमाजें हुई, अल्लाह ने कहा अजान और अकामत के साथ में नमाज पढ़ी गई। इसीलिए कहा जाता मुस्तहब है कि अजान और अकामत के साथ में नमाज को अदा किया जाए। अगर बगैर अजान अकामत पढ़ते हैं फिर भी हो जाएगी, लेकिन ये कि सवाब में इजाफा हो जाएगा। रसूल इस्लाम फरमाते हैं दूसरा वो शख्स है जो रात में अपनी नींद को तोड़ दे। इस वक्त तो ठंडक का जमाना है, अगर हमसे कोई कहे कि आप बिस्तर छोड़ दीजिए तो नामुमकिन है कि बिस्तर गर्म हो जाए और हम बिस्तर से उठ जाएं, लेकिन अगर हमें यकीनन किसी से सच्ची मोहब्बत हो, अगर हमें खुदा से जरा सा भी मार्फत होगी तो हम अपने उस गर्म बिस्तर को छोड़ना पसंद करेंगे उसके खातिर जो हमें हमसे ज्यादा चाहता है, जो हमें हमसे ज्यादा समझता है। और अल्लाह यही तो कहता है कि जब कोई बंदा रात में अपनी नींद को तोड़ दे, जबकि इंसान के एक नेचर में है कि जब उसे सुकून मिल जाए, जब उसका दिल मुतमईन हो जाता है तो इजहार आँख के जरिए होता है। वरना आप देखिए ना, बाज लोग होते हैं रात में 2-2 बज जाता है, नींद नहीं आती है ना, और बाज ऐसे भी हैं हमारी तरह कि 9 बजे भी अगर लेटे तो आराम से सो जाए। ये नींद भी नेमत इलाही है, नेमत खुदा है कि अल्लाह ने दिया है, वरना अगर इंसान सोए नहीं तो पागल हो जाएगा दिन रात जाग करके। और जब इंसान रात में नींद को तोड़ करके मुसल्ले इबादत पर आता है, पूरी नमाज में आपको कहीं भी झपकी नहीं आएगी सिवाए नमाज वित्र के कुनूत में। आप आजमाइएगा तो यकीन जानिए 11 रकत में एक रकत एक ऐसी है जिस पर नींद हावी होने लगती है। अक्सर हम भी जब पढ़ते हैं और हम इसी एक रकत में आकर के ऐसा लगता है कि बस अब मुसल्ला में को छोड़ें और अपने बिस्तर तक पहुंच जाए। ये एक रकत इतनी बाफजीलत है, जब इस रकत में अगर इंसान सो रहा है, बज़ाहिर तो सोएगा ही, अगर नमाज में अजान होने में 10 मिनट 15 मिनट है तो हम सोचते चलो मुसल्ले पर 5 मिनट लेट जाते हैं। और खुदा बंदे आलम क्या कहता है, हमारा ये 5 मिनट का लेटना, अल्लाह मलाइका से क्या कहता है, मलाइका जरा मेरे नजदीक आना और देखो इसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाओ। इसने उन लोगों की तरह जो हमसे गाफिल है उनकी तरह नहीं है, इसने अपनी नींद को तोड़ा। और देखो हालत ये है कि नींद की वजह से ये मुसल्ले पर सो गया है, इसका जिस्म बज़ाहिर मुसल्ले पर है लेकिन इसकी रूह मेरे पास है। इसे ये पता नहीं है कि मैं इसके कितनी दुआओं को मुस्तजाब करने वाला हूँ, मैं इससे कितनी बलाओं को दूर करने वाला हूँ और मैं इसे कितनी नेमतों से नवाजने वाला हूँ। कौन कहने वाला है? खुदावंदे आलम की जात। दुनिया फक्र करे तो इंसान कहते हैं बड़े अच्छे हैं, अगर खुदा मलाइका के दरमियान फक्र करे तो यकीन जानिए इससे बड़ी फजीलत इंसान की और कुछ नहीं हो सकती। रसूल इस्लाम फरमाते हैं तीसरा वो इंसान जो अल्लाह की राह में जिहाद करे फ़कत कुर्बतन इल्लल्लाह और शहीद हो जाए तो परवरदिगार आलम कहता है कि देखो इसने मेरी राह में मेरी खातिर अपने अहलो अयाल को छोड़ा और जिहाद किया, यहाँ तक के शहादत के दर्जे पर फाइज हो गया। इसके खून का एक कतरा मैं जमीन पर गिरने नहीं दूंगा, उससे पहले मैं इसके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दूंगा। ये है खुदा। आप मार्फत को हासिल करें तो यकीन जानिए कि हमारी मार्फत यकीनन मिल सकती है अगर हम थोड़ा सा तवज्जो करें।
क्यों तवज्जो की जाए? चूंकि हम अपने उन्वान पर आ जाते हैं, विलायत फातिमा क्यों जरूरी है। कल हमने छठे इमाम की एक रवायत आप तक पहुंचाई थी, मैं वो नहीं कहूंगी कि आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद बता देती हूँ कि कल हमने एक रवायत बयान की थी छठे इमाम की। आज फिर छठे इमाम की एक रवायत बयान करते हैं, और ये किताब है जनाब ज़हरा के आसमानी 9 नाम। उसमें ये रवायत नकल है कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम बयान करते हैं कि मौला से किसी ने सवाल किया था कि मौला आपकी जद्दा को यानी फातिमा ज़हरा को फातिमा क्यों कहते हैं। कल की मजलिस में मैंने बयान किया था कि फातिमा को ज़हरा क्यों कहते हैं। आज छठे इमाम से किसी ने सवाल किया कि मौला आपके जद्दा को फातिमा क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई अरबी का लुग़त जानता होगा तो वो बता सकता है कि फातिमा फतमा से बना हुआ है। अब अगर दर्स चलता है तो मुख्तसर से चंद लोग आ जाते हैं, और बहरहाल मैं उस पर तो नहीं जाती, लेकिन चूंकि ये फातिमा से बना हुआ, फातिमा यानी किसी चीज को जुदा कर देना, अलग कर देना। फातिमा के माने हैं जुदा कर देना या अलग कर देना। तवज्जो से सुनिएगा, फातिमा के माने हैं जुदा कर देना या अलग कर देना। दो में से आप कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप अपने जहन में रखिए। क्यों कहा कि फातिमा जुदा कर देने वाली है, अलग कर देने वाली है? छठे इमाम बयान करते हैं कि रोज़े क़यामत मेरी जद्दा फातिमा अपने शियों को आतिशे दोज़ख से अलग कर देंगी, जुदा कर देंगी। समझ में आ गया? फातिमा को इसीलिए फातिमा कहा जाता है, अलग कर देने वाली। अच्छा, जनाबे ज़हरा का हमारी जिंदगी पर कितना एहसान है। विलायत हमने कब से माना है? विलायत फातिमा, ये आखिरी पैगाम है और मेरी आखिरी मजलिस सही है। हमने कब माना कि जनाबे फातिमा की विलायत का इकरार हमने कब किया है, या हमारी जिंदगी में जनाबे ज़हरा का कितना एहसान है? पूरी जिंदगी पर एहसान है। क्यों एहसान है? हमारी जिंदगी 6 मराहिल से गुजरती है। तवज्जो रखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप तवज्जो रखेंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात तो नहीं लेकिन आपकी समाअत पर भरोसा करके मैं ये हदीस आप तक पहुंचा सकती हूँ। हमारी जिंदगी 6 मरहलों से गुजरती है, और इन 6 मरहलों यानी स्टेप दर स्टेप, इन 6 मरहले पर जनाबे ज़हरा हमारी मददगार हैं। एहसान है बीवी का। पहला मरहला कौन सा है? ज़र्रात। ज़र्रात कहते हैं मिट्टी को। जब हम कुछ न थे तो फिर पहला मरहला, पहले आप 6 मरहला सुन लीजिए। 3 मरहला इंशाअल्लाह इस वक्त की मजलिस में बयान करूंगी, और 3 मरहला इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बयान किया जाएगा। 6 मरहला है हमारी जिंदगी का, और इन 6 मरहले पर एहसान है बीवी सैयदा का। पहला मरहला क्या है? ज़र्रात यानी मिट्टी। मिट्टी पर एहसान क्यों है? क्योंकि हमारा वजूद जो था वो मिट्टी था, कुछ नहीं थे हम, लेकिन एहसान किया फातिमा ज़हरा ने। पहला मरहला ज़र्रात, दूसरा मरहला है सुलबे पिदर, तीसरा मरहला है शिकमे मादर, चौथा मरहला है जिंदगी जो हम दुनिया में आ गए, पांचवा मरहला है बरज़ख, और छठा मरहला है आखिरत। समझ में आ गई? पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, चौथा मरहला, पांचवा मरहला और छठा मरहला। यानी जिसे हम जिंदगी मानते हैं वो हमारे मरहले का चौथा स्टेप है। अब पहला मरहला क्या है? ज़र्रात। मिट्टी का क्या कमाल है? देखिए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल अमीन से कहा कि जाओ और जा करके मेरे नबी को उनके नवासे की मुबारकबाद दे करके आओ। ये रवायत आपकी 12 सुनी हुई है, मैं वो रवायत पर नहीं जाऊंगी। और जब रसूल इस्लाम के पास जिब्राइल आए, नवासे की मुबारकबाद दिया, वाक़यात करबला सुनाया, तो आगोश में नवासा है और रसूल ज़ारो क़तार रो रहे हैं। अच्छा, बेटी है वो देख रही है कि मेरा बाबा मेरे बेटे को लेकर के क्यों रो रहा है। जनाब ज़हरा ने सवाल किया कि बाबा क्यों रो रहे हैं, बच्चे में कोई कमी है? तो कहा नहीं, बच्चे में कोई कमी नहीं है। तो फिर बाबा रोने की वजह क्या है? तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो, अभी जिब्राइल ने वाक़यात शहादत इमाम हुसैन बयान किया है कि हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अच्छा, माँ थी, तड़प गई,
तो पूछने लगी क्यों शहीद किया जाएगा? तो रसूल इस्लाम ने पूरा वाक़यात करबला सुनाया और सुना करके कहा बड़ा मजलूम होगा, कोई रोने वाला नहीं होगा। तो शहजादी ने तड़प के पूछा था कि फिर कौन रोएगा? कल की मजलिस के आखिरी जुमले पर हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि जनाब ज़हरा ने क्या कहा था? दुआ है। तो रसूल इस्लाम ने क्या कहा? बेटी, एक कैसी कौम को खुदा पैदा करेगा, अपनी कद्र कीमत को समझिए अजीजों, जो जिस जर्रात की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, कोई फजीलत नहीं थी, कोई मनसब नहीं था, उसे जनाब ज़हरा ने कीमती बनाया है। जनाब ज़हरा ने जैसे ही सुना कि एक कौम को खुदा पैदा करेगा जिसके बच्चे हमारे बच्चों को रोएंगे, जिसके जवान हमारे जवान को रोएंगे, जिसकी औरतें हमारी औरतों को रोएंगे, जिसके बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग को रोएंगे, जिस जर्रात को जनाब ज़हरा ने दुआ दिया है वो हमारा और आपका जर्रात था। हमारी कोई कीमत नहीं थी, कोई मंजिलत नहीं थी, लेकिन शहजादी ने पसंद किया, दुआ दी। जब दुआ दिया तो हम इस मंजिल पर आए। दूसरा मरहला क्या है? सुलबे पिता। अगर हमारे बाप का अकीदा विलायत अली पर ना होता तो यकीन जानिए ये मनसब कभी ना मिलता। इस पर भी एहसान है बीवी का कि हमारे लिए उस बाप का इंतखाब किया जिसे जनाब ज़हरा ने पसंद किया है। दुआ है हमारे खुद अपने वालिदैन के लिए कि एहसान है हमारे वालिदैन का कि उन्होंने हमें अपने आगोश में परवान चढ़ाया है, सुलबे पिदर में आए हैं। उसके बाद ये जो विलायत मिली है ये हमें बाप के खमीर से मिला है। और फिर तीसरा मरहला क्या है? शिकम माता। अगर माँ का शिकम पाक पाक ना होता तो हमारा वजूद कभी उस शिकम में ना आता। क्यों नहीं आता? देखिए एहसान बीवी का क्यों है? माँ जब हामिला होती है तब भी फर्श हुसैन पर आती है। जो मकसद था हमारा तख्लीक का, जिसके लिए शहजादी ने हमें दुआ दी थी, वो मकसद कहाँ से पूरा हो रहा है? सुल्बे पिदर से शिकम मादर तक। जब हम आगोश शिकम मादर में आए हमारी तख्लीक का मकसद पता चल रहा है कि शहजादी ने जिसके लिए चुना है वो हम जिंदगी में आकर के नहीं, जब हम माँ के शिकम में थे तब से शुरू हुआ। माँ मजलिस में आई, हमने फज़ाइल भी सुने, हमने मसाइब भी सुने, हमने तारीफें भी सुनी, हमने तवल्ला भी सुना, हमने तबर्रा भी सुना, हमने सब कुछ सुना है इस मजलिस हुसैन में, शिकम मादर में। और उसके बाद जब हम आगोश मादर में आ गए तो कल की मजलिस में ये मरहला बयान किया जाएगा। एहसान है बीवी का हमारी और आपकी पूरी जिंदगी का। माँ के पाको पाकीज़ा शिकम में रखा, हमें मकसद को पूरा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारी जिंदगी भी 3 मरहले से गुजरती है, बहैसियत बेटी, बहैसियत ज़ौजा और बहैसियत माँ। हमने अक्सर बहैसियत बेटी भी बयान किया है, बहैसियत ज़ौजा भी बयान किया है, बहैसियत माँ भी बयान किया है। आज सिर्फ बहैसियत ज़ौजा एक पैगाम और मैं रब से मसाइब पर आ जाऊंगी। बहैसियत ज़ौजा, आपने हदीस किस्सा में अगर शुरू से पढ़ा होगा तो जनाब रसूल इस्लाम की हदीस से चलिए आप कि रसूल अल्लाह आए थे, फातिमा को सलाम किया था, फिर अपने बदन ज़ौफ़ की बात कही थी और उसके बाद रसूल इस्लाम को बीवी ने अपनी चादर उड़ा दी थी, जिसे कहते हैं चादर यमानी या चादर यमनी, दोनों अल्फाज ठीक है। और बीवी, अब मैं उस मरहले पर आती हूँ जहाँ पर इमाम अली दाखिल हुए थे। इमाम हसन भी चादर के नीचे है, इमाम हुसैन भी चादर के नीचे। सिर्फ पैगाम ले लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अमल कर ले जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती करिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को और तब्दील कर लीजिए ताकि तख्लीक का मकसद हासिल हो जाए। जब इमाम अली घर में दाखिल हुए, ये पैगाम है उन सब शौहरों के लिए जो जिनकी शादी हो चुकी है, जो शौहर की मंजिल पर आ चुके हैं। जब इमाम अली घर में दाखिल हुए तो आदाब सिखलाया है कि घर में जब दाखिल हो तो दाखिल होते वक्त ये ना देखो कि घर में कौन कौन मौजूद है,
बल्कि तुम्हारे लिए वाजिब है कि जब तुम घर में कदम रखो तो सलाम करो। अगरचे कोई भी ना हो, घर में रहने वाला, हिफाजत करने वाला फरिश्ता भी है तो वो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। जब इमाम अली घर में दाखिल हुए, जानते हैं कि 3 मासूम चादर के नीचे हैं, लेकिन फिर भी सलाम किया, क्या कह करके कि अस्सलामु अलैका या फातिमा, फातिमा बिनते मोहम्मद, आप आगे आ जाइए कि ए फातिमा तुम पर मेरा सलाम हो। और बीवी ने पलट करके क्या जवाब दिया? वालेकुम या अबल हसन, ए अबल हसन, हसन और हुसैन के वालिद। अब आप देखिए ना, एहतराम, शहजादी ये भी कह सकते थे ना वालेकुम या दी, नहीं, ए हसन और हुसैन के बाबा। यानी जो अदब बीवी ने हमें सिखाया है कि शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप अपने शौहर का नाम लीजिए, लेकिन एहतराम में शौहर समझाया है कि आप जब अपने शौहर का एहतराम करिए तो कभी कभी बच्चों के नाम से मुखातिब किया करिए। क्यों? शहजादे ने बताया ना कि बच्चों के अंदर बाप के लिए एक मोहब्बत पैदा हो जाती है जब आप इस तरह से मंसूब करेंगे। जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं है कि आए 50 साल 60 साल गुजार करके चले गए, अब तो कब्र में जाना नहीं। जिंदगी का एक मकसद है, उस मकसद को हासिल करिए। दोस्तों फरमाया कि कभी भी बच्चों के दरमियान, शौहर के दरमियान इस बात का इख्तलाफ ना करना कि ये ज़्यादा अजीज है या ये ज़्यादा अजीज है। दोनों का मर्तबा है, दोनों का दर्जा है, दोनों की इज्जत है। जब आप औलाद में अदल का तकाजा रखेंगी, अदल करेंगी, तो औलाद भी पलट करके आपके साथ में अदल करेगी। और रवायात अगर आपको देखनी है तो जनाब यूसुफ का वाकया आपने पढ़ा होगा ना कि बज़ाहिर तो जनाब याकूब के कितने बेटे थे? 10 थे। जनाब यूसुफ को लेके 12 थे, 11 बेटे थे पहले, एक बेटा जनाब यूसुफ था। और जनाब यूसुफ जब पैदा हुए तो फिर इन 12 भाइयों में इख्तलाफ क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बज़ाहिर जनाब याकूब का झुकाव जनाब यूसुफ की जानिब ज्यादा था उनकी इस अमल, यानी रसूल थे, ये जानते थे, लेकिन चूंकि हुस्न में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, शरीयत में याकूब जानते थे कि ये मेरा बेटा नबी है, विरासत इसके पास आएगी। और जनाब यूसुफ का अमल भी ऐसा था कि उनका अदब किया जाए। लेकिन जब आप औलाद की फेहरिस्त में देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसमें लिखा था कि जनाब यूसुफ के भाइयों में इसी वजह से हसद पैदा हुआ कि वो 10 भाई ये समझने लगे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे बाप की नजरों में सिवाय जनाब यूसुफ के। और जनाब फातिमा की तरबियत में देखिए कि 2 बेटे हैं और दोनों बेटों के लिए जनाब ज़हरा ने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया है हदीसे के सामने, या कुर्रता ऐनी व समरता फुआदी, मेरी आंखों के ठंडक, मेरे मेवे दिल। ये नहीं कहा ए हसन तू शफी है रोज़े जज़ा है, नहीं, ए हुसैन तू साहिब कौसर, नहीं, कुछ नहीं, तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरा मेवे दिल है, चाहे इमाम हसन है चाहे इमाम हुसैन है। औलाद के बीच में अदल रखिए अजीजों। ऐसा नहीं है, कभी कभी आप देखिए ना, अगर एक माँ के 2 बेटे हों, 2 बेटियां हों, या एक बेटी एक बेटा हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा ज़्यादा बाप से मानूस हो जाता है, बेटियां माँ से मानूस हो जाती हैं। कभी इसका उल्टा हो जाता है, बेटियां बाप से मानूस हो जाती हैं, बेटे माँ से मानूस हो जाते हैं। लेकिन ये शरीयत का तकाज़ा है। अब देखिए रसूल इस्लाम की एक बेटी है, जब माँ की शहादत हुई तो शहजादी कितने साल की थी? 4 या 5 साल की थी। मानूस किससे हुई है? बाप से हुई है। और इस कदर हुई है कि हमने अल्लामा मजलिसी की किताब में पढ़ा है कि जनाब ज़हरा रसूल की शहादत के बाद कितने दिन जिंदा रही है? एक रवायत है 75 दिन और एक रवायत है 95 दिन, यानी 3 महीना में कुछ दिन कम है जो जनाब ज़हरा जिंदा रही हैं। आप यकीन जानिए कि जब आप मसाइलों की किताब पढ़िएगा ना, सिर्फ सुनने पर नहीं जाइएगा, आप किताब पढ़िए। जब आप किताब पढ़ेंगी ना तो रसूल की शहादत के बाद से जनाब ज़हरा ने किसी से गुफ्तगू नहीं की थी। हाँ, गुफ्तगू है लिखी, लेकिन कब की है? शहादत से चंद लम्हा पहले की गुफ्तगू को उलमाओं ने नकल किया है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो चलिए मक्सल की किताब से जनाब सकीना से चलते हैं कि जनाब सकीना की गुफ्तगू आपने पढ़ी है।
शब आशूर, रोज आशूर, असर आशूर, है ना। जब अली अकबर जा रहे थे तो बहन रो रही है। शब आशूर इमाम हुसैन का वो मसाहिब आपने बारहा सुना है कि हुसैन सुलाते रहे कि बेटी सो जाओ, लेकिन सकीना सोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाप कितना मानूस है, वो चाहती है कि जो वक्त है वो मेरा अपने बाबा के साथ गुजरे, और हुसैन चाहते हैं कि आज की शब अगर सकीना सो जाएगी तो इसके बाद सकीना कभी ना सो पाएगी। लेकिन बेटी थी ना, रवायात ने लिखा है कि सकीना असर आशूर तक बातें करती रही, यहाँ तक कि हुसैन रुखसत हो रहे थे, तब तक कि गुफ्तगू उलमाए तफसीर ने लिखा है कि सकीना कहती रही कि बाबा यतीमी किसे कहते हैं, मुझे किसके हवाले किया, तमाम गुफ्तगू मिलेगी, लेकिन शामिल वरीमा के बाद सकीना की कोई गुफ्तगू आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सकीना के बोलने की सलाहियत जा चुकी थी। बाप का सदमा वो सदमा होता है नाज़िज़ों कि उलमा कहते हैं दुआ क्या करें कि खुदा न करे किसी बेटी का बाप दुनिया से रुखसत हो जाए। अगर बाप चला जाता है ना तो बेटी दुनिया में जिंदगी में गरीब हो जाती है। क्यों हो जाती है? मासूमीन फरमाते हैं बाप का होना अमीरी की अलामत है। अगर बच्ची अपने ससुराल में चाहे जितनी अमीर हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाप दुनिया से रुखसत हो जाए तो बेटी जिंदगी में गरीब हो जाती है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। जनाब ज़हरा भी बाद वफात रसूल ज़माने का माहौल देखती रही, बीवी देखती रही कि दरवाजे पर खलीफा अव्वल आकर के कहते रहे दरवाजे पर आग लगा दी जाएगी, धमकियां तो दी गई ना, लेकिन रसूल की बेटी देखती रही क्या दरवाजे पर वाकई आग लगाई जाएगी। ये तो मेरा बाबा आकर के बताता था ये नबूवत के अहले बैत है, लेकिन दरवाजे पर आग लगी तो बेटी को यकीन हो गया कि अगर सर पर बाप का साया होता तो दरवाजे पर आग कभी ना लगाई जाती। अगर मेरा बाबा जिंदा होता तो मुसलमान मेरे साथ ये रवैया अख्तियार न करते। यहाँ तक जुल्म हुआ है। रवायात कहती है कि बीवी जब रोती थी तो अहले मदीना आके अली से शिकायत करते थे, या अली फातिमा से कहो दिन में रोए या रात में रोए। क्या फातिमा आवाज से रोती थी? क्या फातिमा ढाड़े मार के रोती थी? नहीं, रसूल की बेटी मुसलमानों के जुल्म को सख्त रोती थी। ऐसे रोती थी कि जमीन और आसमान में ज़लज़ले आ जाते थे, जमीन कपकपाने लगती थी, कारोबार में रुकावट आने लगती थी। अहले मदीना को खबर हो जाती थी कि रसूल की बेटी अपने बाबा को रो रही है। मुसलमानों ने आके अली से शिकायत किया। इमाम अली ने आके ज़हरा से कहा फातिमा दिन में रोया करो या रात को रोया करो। वो बेटी जिसने अपने बाप को देखा है, जिसने अपने बाप के गम को सहा है, पुरसा देने के लिए कोई ना आया, शिकायत करने के लिए मुसलमान आने लगे। रसूल की बेटी ने रो के कहा याली मैं जिससे रोती हूँ क्या वो सिर्फ मेरा बाबा है? मुसलमानों का नबी नहीं है। जिसे मैं रोती हूँ वो सिर्फ मेरा बाबा है। अली ने ज़हरा को तसल्ली दी, ए फातिमा चलो मैं एक बैतुल हुस्न बनवा देता हूँ। फातिमा जब दिल करे रोने का ना तो बच्चों को लेके चली जाना। अज़ादारो फातिमा बोलती नहीं थी। इसकी एक मिसाल और मैं आपको, अगर आप तक बात पहुँच जाए तो दुआ जरूर मांगिएगा। जब हम रोज़ आशूरा फाका रखते हैं ना तो क्या हमारी औलाद आके हमसे कहती है कि माँ पानी पिला दो, या हम अपनी औलाद से कहते हैं बेटा भूख लगी है? नहीं ना, बच्चा जानता है आज रोज़ आशूरा है, आज मेरी माँ का फाका है, और हमें भी पता है कि हमारा बच्चा फाके से है। रसूल की शहादत के बाद हसन हुसैन देखते रहे अम्मा पर इतने मसालिम ढाए जा रहे हैं, बच्चे खामोश रहते रहे। जनाब ज़हरा उस मकाम पर गई जहाँ पर अली ने बैतुल हुस्न बनवाया। वहाँ जाती थी, गिरिया करती थी। रात को अली आते थे, फातिमा को घर ले आते थे। बस 2 जुमले मसाइल के सुन लीजिए। एक रोज जनाब ज़हरा, क्योंकि कल शहादत है तो मुकम्मल शहादत कल पढ़ी जाएगी। आज बस इतना हक मातम अदा हो जाए कि बीवी राजी होकर के स्पर्श असर से उठे। रवायत कहती है कि जब से रसूल की शहादत हुई है
کبھی بھی دروازہ زہرا نے نہیں کھولا، لیکن آج پہلا موقع ہے، جیسے امام علی گھر آئے، ڈپ الباب ہوا، رسول کی بیٹی پہلو شکستہ اٹھی، دروازے کو کھولا، ایک جملہ کہتی ہے، یا علی آج میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، یا علی صدمہ نہ لیجیے گا، رسول کی بیٹی تو آپ کو سلام کرتی ہے نا۔ ہائے میرا مولا علی شیر خدا زمین پر بیٹھا رو کے کہنے لگا، فاطمہ علی کی غربت سننا ہے تو سنو، علی تو اتنا غریب ہو گیا ہے، جب اہل مدینہ کو سلام کرتا ہے اہل مدینہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ رسول کی بیٹی نے تسلی دیا، یا علی غم نہ کرے، میں ہوں نا، میرے بچے ہیں نا، نواسے ہیں نا۔ آپ جانتی ہیں کبھی بھی جتنا صدمہ علی نے اٹھایا، کبھی علی منہ کے بل نہیں گرے، بس یہ آخری روایات ہے، جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے اور جناب اسما سے بیوی نے کہا تھا میرے مرنے کی خبر پہلے نہ دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، جیسے ہی بچے گھر میں داخل ہوئے گھر میں عجب سناٹا ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کو پکارتی تھی، اے میرے حسن نے میرے لال حسین، اب جب بچے گھر میں داخل ہوئے عجب سناٹا، اسما سے پوچھا اماں کہاں ہے؟ جناب اسما نے جلدی سے دسترخوان کو بچھایا، بچوں نے حیرت سے اسما کے چہرے کو دیکھا، اے اسما کیا ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا؟ میری ماں کہاں ہے؟ جناب اسما نے کہا بچوں تمہاری ماں تمہارے نانا کے پاس چلی گئی، جاؤ جا کے اپنے بابا کو خبر دو۔ عزاداروں کو علی جس نے ہر مصیبت کا سامنا کیا ہے، اپنی مادر گرامی کا صدمہ اٹھایا تو منہ کے بل نہ گرا، اپنے بابا کا غم اٹھایا تو منہ کے بل نہ گرا، آئے رسول اللہ کا جنازہ اٹھایا لیکن منہ کے بل نہ گرا۔ جیسے ہی حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے، رو کے کہا بابا بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میرا مولا علی منہ کے بل زمین پر گرا، آئے رسول کی بیٹی، آئے فاطمہ۔